Welcome everyone. Now in this video we are going to discuss about the concept of exponents. Earlier we already have discussed about the concept of log, and now let's talk about exponents. Y is equals to a to the power x. This is the standard form of any exponent. Now let's discuss properties. तो प्रॉपर्टीज जो है इसकी यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस. आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू अबाउट दैट. So first one is a to the power m into a to the power n. We can write this as a to the power m plus n. Now the second one is a to the power m divided by a to the power n. We can write this as a to the power m minus n. Now the third one is 1 upon a to the power n is a to the power minus of n. Fourth one is a into b to the power n. We can write this as a to the power n into b to the power n. Okay. Now the fifth one, a to the power m to the whole power n, or you can say power to the power. This is equals to a to the power m into n, or a to the power n to the power m. And sixth one is any number to the power 0 is equals to 1. Okay. Then the next thing is exponential equation. See, the steps of solving of any exponential equation and exponential inequality both are same. There is only a minor difference, that equation contains sign of equality and inequation contains sign of inequality. This is the standard form of any equation. A to the power x1 is equals to a to the power x2. Now there are two cases to solve this particular kind of equation. Case 1 says if base is known constant, right? If base is known constant, then x1 is equals to x2. We can directly equate the powers. And the second case is if base is unknown. If the base is unknown, then you need to take log on both sides. Right, and then we can write it as x1 log a is equals to x2 log a, and take both of these in left hand side. Then log a is common, x1 minus x2 is equals to 0. Now you can solve further equation, right? So this is the method how to solve this kind of equation. Now let's take one example. Example is x raised to the power x minus 1 is equals to x squared. Now we need to solve this, and here you can clearly see that this is the case second, because the base is an unknown constant or variable. Variable is already unknown. Now the first step is take log on both sides. Then you will get, power comes out of log. 2 log x. Now further solving this equation,
log x is common in both of these term, and from first term you will get x minus 1 and from second term you will get minus 2 equal to 0, and log x into x minus 3 is equals to 0. So here you will get two answers, log x equal to 0 or x minus 3 is equals to 0. From this you will get x equals to 3, and from this you will get log x is equals to 0. It means log 1 है ना, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है. So from this you will get x equals to 1. There are two answers, x equals to 1 and x equals to 3. Now let's move to the next part, exponential inequalities. Exponential inequalities, and see the method of solution is same as equation, लेकिन दो फॉर्मूले में यहां पे याद रखने हैं. फर्स्ट वन इज a to the power x1 is greater than a to the power x2. There are two results, x1 is greater than x2 if a is greater than 1. Second result is x1 is smaller than x2 if a is in between 0 to 1. And the second result is, देखो पहला और दूसरा रिजल्ट दोनों सेम है. द बेसिक डिफरेंस इज द वे ऑफ राइटिंग. x1 is greater than x2. Again there are two solutions of this. A to the power x1 is greater than a to the power x2 when a is greater than 1, and a to the power x1 is smaller than a to the power x2 when a is in between 0 to 1. Right, now let's take an example. Example is x to the power, now this whole expression is in the power minus 3 log x. Right, this whole expression is the power is greater than 1000. Right, now we need to solve this inequality. Let's see. अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो लॉग लेंगे दोनों साइड, और जैसे ही लॉग लोगे ये पावर वाला पूरा एक्सप्रेशन आगे आ जाएगा. सो वी गेट लॉग स्क्वायर एक्स माइनस 3 लॉग एक्स प्लस 1 इंटू लॉग एक्स ग्रेटर देन, देखो 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3, और इसका जब तुम लॉग लोगे 3 आगे आ जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको मैंने छोड़ दिया. नाउ मल्टीप्लाई बाय लॉग एंड टेक दिस 3 टू द लेफ्ट हैंड साइड, या एक काम करते हैं log x को रिप्लेस कर देते हैं पहले से ही, log x को t से रिप्लेस कर देते हैं. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई t इज ग्रेटर देन 3. नाउ मल्टीप्लाई बाई t, t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 ग्रेटर देन 0. नाउ t स्क्वायर इज कॉमन, t माइनस 3 कुछ तो गड़बड़ है. कुछ तो गड़बड़ है. ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये 1 था, ये यहाँ पे 2 लिख गया है ना. सॉरी, ये 1 है, तो ये 1 है, तो ये सिर्फ t होगा. ठीक है, अब यहां से 1 कॉमन ले लो, t माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, t माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0. अब सबसे पहली चीज, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इससे कोई क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि
इससे क्रिटिकल पॉइंट इमेजनरी मिलेंगे और इमेजनरी आंसर हमें नहीं लेना है, ठीक है। रियल एक्सिस की बात हो रही है, तो सिर्फ इनइक्वालिटी t माइनस थ्री इज ग्रेटर देन 0 इसको सॉल्व करेंगे। t इज ग्रेटर देन 3 और t इज ग्रेटर देन 3 का मतलब log x इज ग्रेटर देन 3 और 3 को हम लोग लिख सकते हैं log 1000 मीन्स x इज ग्रेटर देन 1000, या ऐसे बोल दें x बिलोंग्स टू 1000 टू इंफिनिटी। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज और कुछ फॉर्मूले रह जा रहे हैं, है ना, तो इसी वीडियो में मैं करा देता हूँ क्योंकि टाइम भी है हमारे पास। आप क्या करना है, आपको ये फॉर्मूले केवल नोट कर लेने और लर्न करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट सीरीज, फर्स्ट वन पहली है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। सेकेंड नंबर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू e 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 11 अपॉन 24 एक्स स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। थर्ड वन ln 1 प्लस एक्स, ln का मतलब log x बेस e, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। फोर नंबर log 1 प्लस एक्स बेस ए इज इक्वल्स टू log e बेस ए, बाकी ऊपर वाला फॉर्मूला सेम, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। देन फिफ्थ नंबर e to the power x is equals to 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus and so on. Now sixth number a to the power x is equals to 1 plus x ln a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ln a होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज हैं जो आपको एज इट इज नोट कर लेनी है और लर्न कर लेनी है। देन कुछ थ्योरम्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख लो। थ्योरम वन है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी। ठीक है, ये सबसे पहली थ्योरम है हमारे पास। अब देखो ये क्या है, इसमें बोल रहा है a1 a2 a3 डॉट 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 an तक, ये n कोई एंट्रीज हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे थ्योरम क्या होती है, प्रूव नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ थ्योरम का स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं, प्रूविंग फिर हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN डिवाइडेड बाई N इज ग्रेटर देन इक्वल टू A1 A2 डॉट 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 AN टू द पावर 1 बाई N। देखो ये क्या होता है, ये है अरिथमेटिक मीन एंड ये है ज्योमेट्रिक मीन। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। और एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है फाइनली तीनों मीन का ओवरऑल, दैट इज AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM एंड GM इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू HM। HM मीन्स हार्मोनिक मीन। ऑलराइट, तो ये सबसे पहली थ्योरम है। ये सब फेयर नोट्स आप बनाते जाओ और लिख लेना। थ्योरम सेकेंड, थ्योरम 2, ठीक है। थ्योरम 2 है वेटेड AM GM इनइक्वालिटी, ठीक है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन आप मान सकते हो। क्या है, वेटेड AM GM इन इक्वालिटी, वेटेड AM GM इन इक्वालिटी। अब यहां पे देखो क्या कॉन्सेप्ट है इसका, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये क्या है, N डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। और क्या ले लेते हैं, M1 M2 M3 डॉट 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 Mn तक, ये हो जाएंगे N पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है, ये N पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हो गए। अब वही AM इज ग्रेटर देन GM, यही फॉर्मूला यहां पे भी लगाया जा सकता है इस तरह से भी। क्या है कि M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Mn AN डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन Mn, ये हो गया AM इज ग्रेटर देन A1 की पावर M1 इंटू A2 टू द पावर M2 डॉट 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 AN टू द पावर Mn टू द होल पावर 1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन Mn, ठीक है। या इसी को और किस तरह से बोला जा सकता है, इसको वेटेड AM बोलते हैं, वेटेड अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन वेटेड GM, वेटेड AM इज ग्रेटर देन वेटेड GM, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। नाउ थ्योरम नंबर 3, थ्योरम 3। अब थर्ड थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 3 का फर्स्ट पार्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला है A1 टू द पावर M प्लस A2 टू द पावर M
प्लस एंड सो ऑन ए एन टू द पावर m, सबकी पावर m लगी हुई है ना, डिवाइडेड बाई n इज ग्रेटर देन a1 प्लस a2 डॉट 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 प्लस an डिवाइडेड बाई n टू दी होल पावर m, कॉमा इफ m इज लेस देन 0 और m इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये साथ में कंडीशन है, m 0 से छोटा हो या बड़ा हो, 0 पे नहीं है। ठीक है, कुल मिला के दूसरा पार्ट क्या है इसी थ्योरम का, a1 टू द पावर m प्लस a टू द पावर n प्लस एंड सो ऑन, वही सेम फिर से लिया जा रहा है, डिवाइडेड बाई n इज लेस देन a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an अपॉन n टू दी होल पावर m इफ m इज 0 to 1। तो m 0 से 1 के बीच में है तो ये इनइक्वालिटी लग जाएगी, और 0 से छोटा या 0 से बड़ा है तो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी लग जाएगी। देन थ्योरम 4, देन थ्योरम 4, थ्योरम 4 में अगेन उसी तरह से, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, प्रूफ इतने ज़रूरी नहीं है जितने इन थ्योरम्स के रिजल्ट्स ज़रूरी हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इन पे। ये क्या है, n डिस्टिंक्ट पॉजिटिव, n डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, और PQR ये क्या है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, रिजल्ट क्या है अब हमारे पास, रिजल्ट है a1 टू द पावर p प्लस q प्लस r प्लस a2 टू द पावर p प्लस q प्लस r प्लस एंड सो ऑन an टू द पावर p प्लस q प्लस r इज ग्रेटर देन a1 टू द पावर p प्लस a2 टू द पावर p प्लस एंड सो ऑन an टू द पावर p डिवाइडेड बाई n इंटू a1 टू द पावर q प्लस a2 टू द पावर q प्लस एंड सो ऑन an टू द पावर q डिवाइडेड बाई n इंटू a1 टू द पावर r प्लस a2 टू द पावर r प्लस an टू द पावर r डिवाइडेड बाई n। राइट, सो दिस इज फिफ्थ थ्योरम। इसके बाद आ जाते हैं थ्योरम नंबर 5 पे। थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है वेयरस्ट्रॉस इनइक्वालिटी। ठीक, वेयरस्ट्रॉस इनइक्वालिटी। अब इसको देखते हैं। ओम ओम चारो, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन हम लोग ये टॉपिक अब ख़त्म करके ही नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, 2-4 थ्योरम और बची हैं, वो भी मैं लिखवा ही देता हूँ। सबसे पहला स्टेटमेंट है इसमें, देखो क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़ a1 a2 a3 से लेके an तक, ये क्या है, n पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये हैं n पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2।
then we can say 1 plus a1 into 1 plus a2 dot 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 into 1 plus an is greater than 1 plus a1 plus a2 plus and so on plus an. ये हो गया रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट क्या है? ये वेयरस्ट्रॉस थ्योरम के रिजल्ट्स हैं। सेकेंड रिजल्ट ये है कि 1 माइनस a1 1 माइनस, इसको फर्स्ट रिजल्ट डालना है ना, ये कंडीशन दोनों के लिए कॉमन है, इसको हटा दो। ठीक, ये फर्स्ट रिजल्ट a1 a2 ये n डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया। सेकेंड रिजल्ट में कंडीशन थोड़ी सी चेंज है, एक मिनट थोड़ा सा एडिट करता हूँ। ये हो गया फर्स्ट, और अब देखते हैं सेकेंड नंबर। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट कंडीशन थोड़ी सी चेंज है दोनों में। a1 a2 a3 डॉट 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 n, ये क्या है? n पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक, लेकिन n की कंडीशन लेस देन 1। ठीक है, ये नंबर लेस देन 1 है, तब रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 माइनस a1 1 माइनस a2 डॉट 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 1 माइनस an इज ग्रेटर देन 1 माइनस a1 माइनस a2 डॉट 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 माइनस an। ठीक है, तो ये रिजल्ट हो गया, ये हमारी वेयरस्ट्रॉस थ्योरम। देन थ्योरम नंबर 6, थ्योरम 6 है हमारी कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। कॉची या कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, श्वार्ट्ज जो भी है। स्टेटमेंट है इसका a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस एंड सो ऑन an bn टू द पावर 2 इज लेस देन इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन bn स्क्वायर। ठीक, और इक्वालिटी होल्ड्स इफ a1 अपॉन b1 is equals to a2 upon b2 is equals to and so on an upon bn, right? Then theorem number 7, theorem number 7, take by Ceph inequality. Tabby-Ceph inequality. Tabby-Ceph inequality. A1 is smaller than or equal to A2 is smaller than A3 and so on is smaller than equal to AN. Similarly देखो इसी तरह से B1 से बड़ा है B2 से बड़ा है B3 and so on up to Bn. Then result है इसका n times A1 B1 plus A2 B2 plus and so on AN Bn.
ठीक है, इज ग्रेटर देन a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an, b1 प्लस b2 प्लस एंड सो ऑन bn। ठीक है, तो ये 7th है हमारे पास। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट और है हमारे पास, देन इस क्लास को हम लोग एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास से सेट थ्योरी डिस्कस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट और बच रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ inequalities to find the greatest and least values। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसका देखो एप्लीकेशन क्या है कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बताई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास। रिजल्ट 1, सबसे पहला रिजल्ट x1 x2 डॉट 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 xn, ये क्या है, n पॉजिटिव वेरिएबल्स हैं। ठीक है, n पॉजिटिव वेरिएबल्स हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn इक्वल्स टू c। देन वी कैन से x1 x2 x3 डॉट 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 अप टू xn की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है इज इक्वल्स टू c बाई n टू दी होल पावर n। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रख सकते हो। सेकेंड रिजल्ट है इसी सेम कॉन्सेप्ट का, x1 x2 डॉट 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 xn इज इक्वल्स टू c। तो यहां से रिजल्ट है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn, इसकी लीस्ट वैल्यू। देखो प्रूविंग नहीं है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। n c टू द पावर 1 अपॉन n। देन तीसरा एंड लास्ट स्टेटमेंट है x1 टू द पावर m 1, x2 टू द पावर m2 डॉट 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 xn टू द पावर mn। इसकी अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी जाए इज इक्वल्स टू एक मिनट 33 मिनट्स। ये ग्रेटेस्ट होगा व्हेन x1 अपॉन m1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू xn अपॉन mn इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डॉट 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 प्लस xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन डॉट डॉट mn तक। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये कुछ हमारे पास रिजल्ट्स थे, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इनइक्वालिटी आज से हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे विच इज़ सेट थ्योरी। ठीक है, और उस पर नेक्स्ट पे मूव करेंगे या इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व कर लेंगे, है ना। अभी क्योंकि कॉन्सेप्ट बताया मैंने और फटाफट सॉल्व करके हम लोग आगे बढ़ गए, तो कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, so thank you very much for watching. Have a nice day.